Hello there, aspirants. I hope all of you are doing perfectly well and very much welcome to Textbook Super Coaching. In today's class, we're going to be talking about a very important topic that is how to find out the partition function for classical system, bosonic system, and fermionic system. So, with the help of a very easy example, we will try to understand this fact. So, without any further ado, let's initiate. Suppose हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और उन दो पार्टिकल्स को हमें तीन एनर्जी स्टेट में सजाना है. तो I have two particles and they has to be arranged into three energy states. Two particles has to be arranged in three energy states. Namely 0, epsilon, 2 epsilon. We have to find out the partition function. Find partition function, and rather canonical partition function. Find canonical partition function considering number one, they are classical particles. Of course, classical particles can be distinguishable, can be indistinguishable. It's a matter of choice. मैं distinguishable है. Secondly, they are bosons. Thirdly, they are fermions. कैसे देखेंगे इस चीज को? अच्छा, पहले हम लोग मानते हैं कि क्लासिकल पार्टिकल है. तो भाई साहब क्लासिकल पार्टिकल है तो that can be distinguishable, can be indistinguishable. It's a matter of choice. तो हम लोग distinguishable ले रहे हैं. distinguishable. तो अगर distinguishable ले रहे हैं तो जरा मुझे बताओ कि एनर्जीज क्या क्या है? 0, epsilon, 2 epsilon. I'm taking one particle as A, another particle as B. तो कैसे जा सकता हूं? दोनों पार्टिकल को यहां पे रख सकता हूं भाई. I can place both the particles over here. AB. एक को यहाँ पे रख के एक को यहाँ पे रख सकता हूँ, एक को यहाँ पे रख के एक को यहाँ पे रख सकता हूँ. See, these two are different state, right? Just because particles are different, so A को 0 पे रखा, B को epsilon पे रखा, B को 0 पे रखा, A को epsilon पे रखा. These two are different state. Then A को यहाँ पे रख के B को यहाँ रख सकता हूँ, B को यहाँ पे रख के A को यहाँ पे रख सकता हूँ. Both AB यहाँ रख सकता हूँ. Then A को यहाँ पे रख के B को यहाँ, B को यहाँ पे रख के A को यहाँ, then A B दोनों को यहाँ पे रख सकते हैं. So these are all the possible combinations of states. इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं तो इस फर्स्ट केस में एनर्जी इज 0, सेकंड केस में एनर्जी एप्सिलॉन, थर्ड केस में एनर्जी एप्सिलॉन, फोर्थ केस में एनर्जी 2 एप्सिलॉन, फिफ्थ केस में भी 2 एप्सिलॉन, सिक्स्थ केस में 2 एप्सिलॉन. ओके, फिर यहाँ पे 3 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, इस पे भी 3 एप्सिलॉन, एंड लास्टली हमारा एनर्जी आ रहा है, दोनों पार्टिकल को 2 एप्सिलॉन पे रखे हो तो 4 एप्सिलॉन. तो भाई अगर यहाँ पे हम लोग एनर्जी के बारे में बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब डिजेनरेसी उसका करस्पॉन्डिंग 1. एनर्जी एप्सिलॉन, डिजेनरेसी, करस्पॉन्डिंग डिजेनरेसी क्या है? यहाँ पे दो एनर्जी स्टेट है करस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट, सेम एनर्जी है एप्सिलॉन करस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट स्टेट, तो डिजेनरेसी 2. देन आई हैव एनर्जी 2 एप्सिलॉन. देखो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन, सो 2 एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग तीन डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, तो डिजेनरेसी 3. Then 4 epsilon, 3 epsilon के corresponding two different energy states हैं, तो degeneracy is 2, and 4 epsilon के corresponding state है एक ही state. So how to write down the partition function? Z canonical partition function will be equals to summation over I gi e to the power of, hang on, summation over I gi e to the power of negative of beta ei. तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या क्या एनर्जीज है, 0 है, एप्सिलॉन है, 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन, 4 एप्सिलॉन, एंड these are their corresponding degeneracies 1 2 3 2 1.
Good. So it will be 1 e to the power of minus beta into 0 plus 2 into e to the power of minus beta into epsilon plus 3 into 232, okay, into e to the power of minus beta into 2 epsilon plus 2 3, okay, 2 into e to the power of minus beta into 3 epsilon plus 1 into e to the power of minus beta into 4 epsilon. So these are my partition function. This is the whole partition function. 1 into e to the power of minus beta into 0, that is actually equals to 1. अच्छा, डीजे में से एक बार चेक कर लेता हूँ. 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 और यहाँ पे e to the power of minus beta into 0, beta into epsilon, beta into 2 epsilon, 3 epsilon, 4 epsilon. Very good. तो 1 plus 2 into e to the power of minus beta epsilon plus 3 into e to the power of minus 2 beta epsilon plus definitely I can say 2 into e to the power of minus 3 beta epsilon and plus e to the power of minus 4 beta epsilon. Fine. This is all I can do. Next, अगर मैं मानता कि जो मेरा पार्टिकल्स हैं वो बोसॉन्स हैं, तो डेफिनेटली मुझे एक चीज ध्यान में रखना पड़ता है कि बोसॉन्स आर क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स एंड देयरफॉर दे आर नेसेसरीली इंडिस्टिंग्विशेबल. क्लासिकल पार्टिकल कैन बी डिस्टिंग्विशेबल, कैन बी इनडिस्टिंग्विशेबल. मान ले तेरे पास बॉल्स हैं, तूने सारे के सारे बॉल्स को नीला कलर कर दिया, सब बॉल्स के मास m है, तो डेफिनेटली दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल. एंड डिस्टिंग्विशेबल व्हेन अगर एक बॉल का कलर ब्लू है, एक को मैंने ग्रीन कलर कर दिया, एक को रेड कलर कर दिया, तो डेफिनेटली दे आर डिस्टिंग्विशेबल. बट क्वांटम पार्टिकल्स आर लाइक ऑलवेज नेसेसरीली इनडिस्टिंग्विशेबल. तो भाई साहब बोसॉन्स को कैसे सजाओगे? बोसॉन्स को सजाने के टाइम पे ध्यान रखना कोई भी एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में कितने नंबर ऑफ बोसॉन्स रहेंगे इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हारा जैसा मर्जी वैसे सजा सकते हो. तो एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन. एक बोसॉन को अच्छा इंडिस्टिंग्विशेबल है तो दोनों को ही ए लेना पड़ेगा. दोनों को यहाँ पे रख सकता हूँ, एक को यहाँ पे रख के यहाँ रख सकता हूँ. अच्छा इसको यहाँ और इसको यहाँ पे रख के ऐसे दूसरा स्टेट नहीं बना सकता, जस्ट बिकॉज़ बोसॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, सो दिस टू आर सेम स्टेट. तो जैसे कि यहाँ पे दो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल था, तो एक को ए में, ए को 0, बी को एप्सिलॉन में, फिर डी को 0 में, ए को एप्सिलॉन में रख पा रहा था. बट जस्ट बिकॉज़ बोसॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, सेम तुम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, तो अलग अलग स्टेट नहीं बनेंगे इसको इधर और इसको इधर रखने से. दूसरा वाला दोनों को यहाँ पे रख दिया, एक को फिर यहाँ पे, एक को फिर यहाँ पे रखा, लास्टली दोनों को यहाँ पे रख दिया. सो व्हाट आर द टोटल एनर्जी स्टेट्स आई एम गेटिंग? You see total energy. अच्छा फर्स्ट केस में आई थिंक इट वाज जस्ट थोड़ा सा एनर्जीज को गलत लिखा है यहाँ पे. एनर्जीज आर बेसिकली 0 एप्सिलॉन एंड 2 एप्सिलॉन. तो टोटल जो एनर्जीज आ रहे हैं हमारे, क्या आ रहा है टोटल एनर्जी? सर जी टोटल एनर्जी पहले केस में आ रहा है 0, दूसरे केस में आ रहा है एप्सिलॉन, तीसरे केस में आ रहा है 2 एप्सिलॉन, चौथे केस में आ रहा है, यहाँ पे एनर्जी आ रहा है 3 एप्सिलॉन, यहाँ पे एनर्जी आ रहा है 4 एप्सिलॉन. That's all I can say. ठीक है? Is there any other way? एक को यहाँ पे रखे, एक को यहाँ पे रखे. और एक सिनेरियो बन सकता था, दैट इज एक बार ए को यहाँ पे रख के, एक बार यहाँ पे ए रख सकता, ए रख के ए रखा, ए रख के यहाँ पे ए रख सकता था, तो उसके लिए भी एक एनर्जी आता, दैट इज 2 एप्सिलॉन. ठीक, फिर दोनों एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे रखा, एक को यहाँ पे, ऐसा. सो दिस इज द थिंग. सो नाउ यू कैन सी जो टोटल हमारे एनर्जीज हैं, टोटल एनर्जी का एक वैल्यू हो सकता है 0 करस्पॉन्डिंग डिजनरेसी 1, एक वैल्यू हो सकता है एप्सिलॉन करस्पॉन्डिंग डिजनरेसी 1 क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन एक ही बार आया है, एक वैल्यू हो सकता है 2 एप्सिलॉन करस्पॉन्डिंग डिजनरेसी 2, एक वैल्यू हो सकता है 3 एप्सिलॉन करस्पॉन्डिंग डिजनरेसी 1, एक वैल्यू हो सकता है 4 एप्सिलॉन करस्पॉन्डिंग डिजनरेसी 2. सो डेफिनेटली जब मैं पार्टीशन फंक्शन रादर कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन लिखूंगा फॉर बोसोनिक सिस्टम, इट विल बी समेशन ओवर i gi e to the power of negative of beta into ei. I can write it like this. जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 1 into e to the power of negative of beta into 0
plus 1 into e to the power of negative of beta into epsilon, क्योंकि सबका डिजनरेसी 1 है, सिर्फ जब एनर्जी 2 एप्सिलॉन होगा तब डिजनरेसी 2 होगा, तो एप्सिलॉन हो गया प्लस 2 into e to the power of negative of beta into 2 epsilon, then plus 1 into e to the power of negative of beta into 3 epsilon, and then plus 1 into e to the power of negative of beta into 4 epsilon. I think I'm quite right. 1 1 2 1 1, बाकी 0 epsilon 2 epsilon 3 epsilon 4 epsilon. Very good. 1 1 2 1 1 1 epsilon. So this is basically the partition function for the bosonic system. Similarly, you can write down partition function by considering those two particles as fermions. If they are fermions, then of course there are two things to be remembered. First of all, they are indistinguishable necessarily because quantum particles, indistinguishable necessarily because they are quantum particles. Secondly, they obey the Pauli's exclusion principle. They obey Pauli's exclusion principle. That means no two identical fermions, no two identical term बहुत ज़्यादा important है, no two identical fermions can be placed in the same quantum state. That is Pauli's exclusion principle. No two identical fermions can be placed in the same quantum state. हम लोग यहाँ पे fermions के स्पिन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं मोस्टली ऐसे टाइप से क्वेश्चंस पे, अगर करोगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा टफ हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए हम लोग स्पिन कंसीडर नहीं कर रहे हैं. अगर मान लो कि मैं बोलूं कि यहाँ पे तुम दो पार्टिकल को नहीं रख सकते, तो कोई स्टूडेंट बोल दिया कि सर मान लो कि अगर फर्मियन का स्पिन हाफ है तो एक पार्टिकल को स्पिन हाफ में रखूंगा, एक को डाउन में रखूंगा, तो उसका जो स्टेट होगा स्पेशल स्टेट है 0 टेंसर प्रोडक्ट स्पिन अप, इसके लिए स्टेट होगा 0 स्पेशल स्टेट टेंसर प्रोडक्ट स्पिन डाउन. ये तुम कर सकते हो, बट बेसिकली हम लोग स्पिन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जस्ट नॉट टू मेक लाइक unnecessarily complicated. Definitely fermions होगा तो स्पिन होगा ही, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, बट फिलहाल के लिए सिर्फ समझाने के तौर पे हम लोग स्पिन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. अगर स्पिन को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे, फिलहाल के लिए कंसीडर नहीं करेंगे, तो देन डेफिनेटली दो fermions ए को तुम सेम जीरो में नहीं रख सकते. एक को यहाँ पे रखोगे तो एक को यहाँ पे रखना है, एक को यहाँ पे रखोगे तो एक को मुझे तो यहाँ पे रखना है, फिर इसको यहाँ पे रखोगे तो एक को यहाँ पे. ठीक है, so this is the thing. And if I just write down the total energy, the energy can be equal to, sir, total energy, if I just write it over here, so energy for this case is equals to I'm getting epsilon, for this case I'm getting 2 epsilon, for this case I'm getting 3 epsilon. So sir, total energy है epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, उनके degeneracies है, E is epsilon with degeneracy 1, E is 2 epsilon with degeneracy 1, E is 3 epsilon with degeneracy 1. So definitely partition function, canonical partition function for the fermionic system will be equals to summation over I gi e to the power of negative of beta into ei, and this will actually be equals to 1 into e to the power of negative of beta into epsilon plus 2 into e to the power of negative of beta into 2 epsilon plus 3 into, I'm sorry, not 2, 1 plus 1 into e to the power of negative of beta into 3 epsilon. That's all I can say. ठीक है, सबका डिजनेसी 1 है, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन. हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था, जो थ्योरम को अक्सर लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट वो चीज सही नहीं है. मैं तुम लोगों को थोड़ा बता दूं. एक चीज है कि सपोज तुम्हारे पास क्लासिकल पार्टिकल्स हैं, इफ Z1 is the single particle partition function, then for a system of n classical particles, बहुत ध्यान से, for a system of n classical particles, for a system of n classical particles, canonical partition function, canonical partition function would be
z1 to the power of n only if they are distinguishable and it is z1 to the power of n by n factorial if they are indistinguishable. बट बच्चों ध्यान रहे कि ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए लग सकता है, क्वांटम पार्टिकल्स होगा तो नहीं लगेगा। क्वांटम पार्टिकल्स के लिए ये चीज नहीं लगेगा। द अबव थ्योरम is not true for quantum particles. Quantum particles का मतलब क्या है? Bosons and fermions. They are necessarily indistinguishable. उनके लिए ये थ्योरम काम पे नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल के लिए काम पे आता है। ध्यान रहे, बोसॉन्स फर्मियंस के लिए एक सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकाल के टू द पावर ऑफ n करके n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन नहीं निकाल सकते। बट अगर क्लासिकल सिस्टम तुम्हारे पास है तो एक सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकालो, टू द पावर ऑफ n करके n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो इफ द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, एंड टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल करके n पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकाल सकते हो इफ दे आर इनडिस्टिंग्विशेबल। जरा इस फॉर्मूले को मतलब देखते हैं कि ये कितना सही है कितना गलत है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल्स था, ऑफ कोर्स हम लोगों ने क्लासिकल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल लिया था, बट यहाँ पे हम लोग शुरू से ही दो पार्टिकल कंसीडर करके निकालेंगे ये पार्टीशन फंक्शन। अब क्या करूंगा, देखूंगा कि वो थ्योरम सच है या नहीं। तो कैसे डिफाइन करूं, कैसे देखूंगा उस चीज को, सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकालूंगा, फिर उसके स्क्वायर कर दूंगा। जस्ट बिकॉज़ दे आर क्लासिकल डिस्टिंग्विशेबल, एक पार्टिकल ए दूसरा पार्टिकल बी, क्लासिकल पार्टिकल कैन बी डिस्टिंग्विशेबल कैन बी इनडिस्टिंग्विशेबल, दैट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। हमने डिस्टिंग्विशेबल लिया, तो अगर डिस्टिंग्विशेबल लिया है तो सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन z1 होगा, तो टू पार्टिकल्स हैं तो z1 का स्क्वायर करके निकल जाएगा। वेरी गुड। तो इसी प्रॉब्लम को एक बार उस तरीके से करके देखते हैं, सेम रिजल्ट आएगा या नहीं। तीन एनर्जी स्टेट है, 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। वेरी गुड, आ जाओ। देख क्लासिकल पार्टिकल है ना, एंड ऑफ कोर्स डिस्टिंग्विशेबल। मैंने लिया एनर्जी 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। पहले सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन निकालूंगा, तो एक बार पार्टिकल को यहां रख सकता हूं, एक बार पार्टिकल को यहां पे रख सकता हूं, एक बार पार्टिकल को यहां पे रख सकता हूं। तो सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन क्या आएगा भाई, z1 इज इक्वल टू, ये एनर्जी स्टेट नॉन डिजनरेट, तो 1 into e to the power of minus beta into 0 प्लस ये एनर्जी स्टेट भी नॉन डिजनरेट, तो 1 into e to the power of minus beta into epsilon प्लस ये भी नॉन डिजनरेट, तो 1 into e to the power of minus beta into 2 epsilon। तो क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस e to the power of negative of beta epsilon प्लस e to the power of minus 2 beta epsilon। ये आ जाएगा। दिस इज द सिंगल पार्टिकल पार्टीशन फंक्शन। हमारे यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, क्या इसका तो z2 मतलब टोटल सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन क्या z1 टू द पावर ऑफ 2 करके आ जाएगा, जस्ट बिकॉज़ टू पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल। देखो डिस्टिंग्विशेबल क्लासिकल पार्टिकल के लिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, z1 टू द पावर ऑफ n करने से काम बन जाएगा। तो यहाँ पे z1 है, टू द पावर ऑफ 2 करने से काम बन जाना चाहिए। 1 प्लस e to the power of minus beta epsilon प्लस e to the power of minus 2 beta epsilon। इसका अगर स्क्वायर कर दूंगा भाई, मुझे क्या मिलना चाहिए, देख तू अगर इसका स्क्वायर करेगा तो पहले इसको a मानो, इसको b मानो, a प्लस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 बीटा एप्सिलॉन प्लस 2 into the power of minus beta epsilon प्लस b स्क्वायर दैट इज e to the power of minus 4 beta epsilon प्लस 2 into a into b, मतलब 2 into the power of minus 2 beta epsilon into 1 plus to the power of minus beta epsilon। इसको अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस, अच्छा e to the power of यहाँ पे 2 into e to the power of minus beta epsilon आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 into the power of minus 2 beta epsilon, यहाँ पे e to the power of 3 into e to the power of minus 2 beta epsilon प्लस यहाँ पे, अच्छा 3 बीटा एप्सिलॉन यहाँ पे है, 2 into e to the power of minus 3 बीटा एप्सिलॉन प्लस
1 into e to the power of minus 4 मीटर। देख ये जो पार्टीशन फंक्शन आया है और यहाँ पे ये जो पार्टीशन फंक्शन आया है, these are exactly the same। यहाँ पे मैंने दो पार्टिकल को शुरू से ही कंसिडर करके चला था, करके ये पार्टीशन फंक्शन निकाला। बट यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे मैंने पहले सिंगल पार्टिकल का पार्टीशन फंक्शन निकाला, फिर उसके स्क्वायर करके मैंने दो पार्टिकल के पार्टीशन फंक्शन निकाल दिया, बट आंसर सेम, दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। तो डेफिनेटली ये जो थ्योरम है ये सही है, बट मैं बार-बार कह रहा हूँ ये थ्योरम सिर्फ क्लासिकल सिस्टम के लिए ही वैलिड है, क्वांटम सिस्टम में बिल्कुल भी अप्लाई करने की कोशिश मत करो। मतलब बोसोनिक फर्मी सिस्टम में ये अवेलेबल नहीं है, एप्लीकेबल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाया हूं। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड ऑफ कोर्स वी विल अगेन मीट ऑन द नेक्स्ट क्लास। बाकी मैं एक बात, इंपॉर्टेंट बात कह दूं बच्चों को, जो भी बच्चे सीएसआई नेट जून 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उन बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी है, बिकॉज़ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग एक बूस्टर कोर्स लाया है, जिस कोर्स में बेसिकली आप लोगों को सारे के सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज कराए जाएंगे फॉर सीएसआई नेट, गेट, जेस्ट, टीआईएफआर। एंड नॉट ओनली दैट, सारे के सारे डिटेल थ्योरी क्लासेस के जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो आप लोगों को जो लेक्चर्स पढ़ाए गए, वो सारे के सारे लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कर दिया जाएगा। Mock test will be available because you know for a competitive examination, mock test is very important, and books will be provided to you. So I think this course will be very much helpful. And of course, there is a scholarship test which is going to be organized on the next day, like 26th of April, tomorrow. And the timing of the test is from 8 a.m. to 11:59 p.m. Okay, so you just have to enroll to appear for the test. It's a 30 minutes of test. अगर तुम अपेयर करके इस टेस्ट को क्रैक करते हो तो डेफिनेटली अप टू 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकता है। मतलब इफ यू जॉइन द कोर्स यू कैन गेट अप टू 90% ऑफ स्कॉलरशिप, एंड डेफिनेटली आई मस्ट टेल यू कल ही है टेस्ट, लाइक टुमारो 26th of April। तो डेफिनेटली ऐप पे जाओ, एनरोल करो और टेस्ट में प्रिपेयर करो। सो हाउ टू गेट इनटू द ऐप, यू कैन डेफिनेटली स्कैन दिस क्यूआर कोड। अगर इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो डेफिनेटली यू कैन जॉइन, यू कैन एनरोल टू द ऐप। And yes, in the app you will get lots of other things like free live lectures you can attend, you can get free practice sessions, free mock tests, free quizzes, free study materials, all these things are there. So I think it will be helpful. Thank you very much, we will meet on the next class. Thank you.